Good evening, everyone. Before we proceed, good evening. Is that what you wanted to say, Bacha, or is there something else? Your voice cracked, so I couldn't listen. Ma'am, I said good evening only. Good evening. Okay. Before we proceed, a quick check on how far we have come. Tanisha, quickly, can you brief me about how many number of chromosomes are required for a human cell to survive on its own? Tanisha, quickly. Ma'am, there are 23 pairs of 2 chromosomes. So that makes 46 chromosomes in total. Yeah, individual. Good. Um, Sanchi, can you quickly explain what is binary fission? And has Sanchi left? Sanchi, quickly, what is binary fission? And can you please repeat? Sorry. Can you please repeat what are you asking? I'm not getting you, bacha. What are you trying to say? एक बार दोबारा बोलोगे? I'm saying that please repeat what are you asking? Still not getting what you're trying to say. Anyways, we'll move to someone else. Vidushi, would you like to tell what is binary fission? Vidushi. Yes, no, no idea. We'll quickly move on to someone else then. Okay. Anshika, what is binary fission? You're not audible. Was you audible to everyone else apart from me? क्योंकि मुझे नहीं सुनाई दिया. Is my mic not working or my speakers are not working? Did anyone else hear what Anshika had to say या नहीं? सच में समझ नहीं आया, आवाज नहीं आई. Ma'am, am I audible now? Yeah. You're audible now. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, binary fission is a form of asexual reproduction. Hmm. And what about asexual reproduction? In which the nucleus and all the genes and chromosomes duplicates itself into the another organisms to form 2 daughter cells. Okay. Not the nucleus, but you can say a cell in itself or an organism in itself, which is unicellular, divides itself into 2, forming 2 daughter cells. ठीक है? अगर आप cell या organism बोलते हो, that implies that things inside the cell or the organism must be getting multiplied also. Okay, so that is implied. ठीक है? And as that was a quick check, nothing much to talk about. ठीक है, बाइनरी फिजन का हमने बता दिया था. ओरिएंटेशन में बहुत फर्क पड़ता है. When in the case of amoeba अगर आप बात करें तो वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है, but when you're talking about specific organisms just like leishmania, then yes, orientation plays a very important role because it actually does divide itself, but around a single axis. Either it is transverse, which is horizontal. Sorry, this is not horizontal. You can also call it as transverse. ठीक है, और जब आप ऐसे की बात करो जब, तब इसे लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं. ठीक है, so longitudinal is what leishmania gets itself divided into. और horizontally भी होते हैं, we'll take that up in the coming slides. ठीक है, जब आप बाइनरी फिजन की बात करो तो बाइनरी मीन्स समथिंग विच इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2. A single thing which is getting divided into 2 is known as binary. And fission, ठीक है, आप पेरिमीशियम की बात करो, दिस इज आल्सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इसको किसी पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, मतलब किसी सेकंड पार्टनर की जरूरत नहीं होती. इट इज
capable of producing an offspring out of it without help of any kind of other partner to it. ठीक है, तो कैसे मतलब है कि अगर यहाँ पे ये देखो, ये सिंगली अपने आप को सिंगल हैंडेडली डिवाइड करके दो डॉटर पेरेमिशिया बना लिए इसने. So it didn't require any kind of other external partner to get involved into intercourse या sexual activity. उसके बाद ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, नहीं. दे आर कैपेबल कि वो अपने पेरेंट्स खुद ही बनते हैं एंड दे कैन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स देमसेल्व्स. सो दैट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. और अब अगर वैसे हमने यूकैरियोट्स की बात करी कि यूकैरियोट्स क्या करते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन को ही फिजन बोला जाता है. ठीक है. एंड अगर आप यूकैरियोट की बात करो तो यूकैरियोट्स हैव सर्टेन ऑर्गेनल्स. हाँ कार्तिकेय, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एज ओनली. ठीक है, नहीं समझ में आता यू कैन आस्क क्वेश्चन. मैं इसी स्लाइड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी इसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं है. जब आप यूकैरियोट्स की बात करते हो तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, जिनके पास न्यूक्लियस तो है ही है, प्लस साथ में और भी ऑर्गेनल्स हैं. ठीक है. तो किसी भी यूकैरियोट को उठा के देख लो, ह्यूमन सेल की ही बात करें तो उसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा है, एंड यस हमने बोला था ना सेल डिवीजन के टाइम पे, टू योर सरप्राइज, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डिवाइड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भी बिना सेल डिवीजन के भी डिवाइड होता रहता है. ठीक है. मतलब जैसे आप नॉर्मली अपना कोई काम कर रहे हो एंड वन ऑफ द सेल हु इज सिटिंग ऑन योर फिंगर टिप डिसाइड्स कि यार अभी मेरे को डिवाइड नहीं करना है, आई एम ओके विद डूइंग डे टू डे वर्क, मेरे को नॉर्मल वर्क करना है, अभी मेरे को डिवीजन का टाइम नहीं आया. इवन देन mitochondria sitting inside that cell will be multiplying. That depends on the factors. And can you think of any factor which comes to your mind कि ऐसा क्या हो रहा होगा कि सेल को डिवाइड नहीं होना, फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना फिजन करके दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लूंगा. ऐसा उसको क्यों लगा, मतलब why did it actually go under fission? It should have sit idle just like cell, कि जब सेल डिवाइड करेगा तभी करूंगा. उसको अचानक से खुद की नीड क्यों पड़ गई? यस मानवी. मैम इट कुड बी कि मैम जो हमारे वो जो फिंगर टिप होगी उससे ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वही होता है पावर हाउस जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म्स में करता है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड. एग्जैक्टली. ठीक है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी नीड्स. ठीक है. मान लो हमने अभी पीछे भी बात करी थी लास्ट क्लास में, देयर आर सर्टेन म्यूटेशंस व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड द बोन्स ऑफ पीपल हु आर एक्सेसिवली यूजिंग मोबाइल फोन्स, या उनका थंब या फिंगर से बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो रहा है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दोज म्यूटेशंस, तो उनके सेल्स में क्या चीज ज्यादा पाई होगी, क्योंकि आप जब यूज करते हो तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है उस हिस्से की. तो एनर्जी कंजम्पशन के लिए सेल क्या करेगा, ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा ग्लूकोज खाने लग जाएगा, नहीं, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन भी तो करना पड़ेगा उसी रेट पे. अगर एक सेल बाहर से ग्लूकोज, चलो एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए, उसको समझ में आ गया कि यार मेरा तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसने ग्लूकोज ज्यादा इनटेक शुरू कर दिया. लेकिन उस ग्लूकोज के इनटेक के बाद उसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म में रिलीज करना भी तो उसी रेट पे पड़ेगा उसे. ये तो ना कि ग्लूकोज बैठा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया फिर भी एक ही बैठा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया तो उतना ही काम करेगा ना जितना वो पहले भी कर रहा था. So it will start dividing itself so that the energy consumption and the energy conversion to ATP is increased according to the energy requirement of that particular area या particular cell या particular tissue. ठीक है. इसलिए बाइनरी फिजन होती है, यूकैरियोट्स में होती है. उसको आप सेल डिवीजन बोलो या नॉर्मल उसको बाइनरी फिजन बोलो, इट इज वन एंड द सेम. ठीक है. तो ये अगर आप देखो तो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही हो रही है. ठीक है. इवन द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स इन दिस प्लेन, वो कोई और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में नहीं होता, वो बीच में से डिवाइड होता है. दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन किस प्लेन में होता है, नहीं. सिर्फ एक लेशमानिया का याद रखो कि अगर उसका स्पेसिफिकली एग्जांपल आता है देन दैट स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल, बाकी सारे किसी भी प्लेन में कर लो या मोस्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में ही होते हैं. ठीक है. एनी डाउट्स सो फार? चलो आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन. जब आप फिजन की बात करो तो टूट के बिखरना, और बाइनरी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, दो या दो से ज्यादा. फिर दो से ज्यादा तो कितने भी हो सकता है, 3 मान लो या 300 मान लो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. तो मल्टीपल फिजन का मतलब है कि किसी चीज के अंदर मल्टीपल या रिपीटेड डिविजन हो रही है.
ठीक है, उसका न्यूक्लियस मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, और ये कहाँ होता है, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए दे रखा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो क्या करता है, रिपीटेड, आई शो यू द पिक्चर, ठीक है, वो करता क्या है, रिपीटेड, देखो सबसे पहले प्लाज्मोडियम इस तरह बैठा हुआ है, एक सेल है, ठीक है। Now this cell is not able to survive in any normal conditions. उसको favorable conditions ही चाहिए so that it can start dividing itself. ठीक है, मतलब it can start being itself, या वो individual अपनी personality को showcase कर सके, ठीक है। वो तब तक एक शेल में बैठा रहता है जब तक उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। तो वो जब तक उस शेल में बैठा है ना, देखो शेल में बैठे बैठे वो क्या कर रहा है, मल्टीपल डिविजन्स कर रहा है अपने। और मल्टीपल डिवीजन किस चीज की, ये चीज जो बीच में आप देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियस। और तो वो कुछ डिवाइड करता नहीं, वो क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियस के ही मल्टीपल डिविजन्स बना रहा है। इट इज कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग इट्स न्यूक्लियस इनटू मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है। और वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, अगर आप ये व्हाइट स्पेस देखो, दिस इज नथिंग बट इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये बड़े बड़े हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरे सेल का थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म अपने अंदर ले लेते हैं और एक छोटे छोटे सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। सो दीज आर नॉट नाउ एक्टिंग एज इंडिविजुअल सेल्स, लेकिन वो अभी भी एक शेल के अंदर ही है, बिकॉज दे हैव नॉट फाउंड अ पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस फॉर थ्राइविंग, या वो बाहर जाके अकेले जी सके। जैसे कैंगरू का एग्जाम्पल लेते हो, तब तक बच्चा कैंगरू के अंदर ही रहता है, कैंगरू मदर के अंदर रहता है, जब तक कि ही इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड कि वो बाहर निकल सके, ठीक है। ही इज ऑलरेडी सर्वाइविंग इन द सैक बट ही इज नॉट कमिंग आउट अनलेस एंड अनटिल ही फाइंड सर्टेन कि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो गया और फेवरेबल कंडीशंस मिल गई है। दैट इज हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो वर्क, स्पेशली इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम। वो क्या कर रहा है, अगर आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो तो दिस टर्म विच आई एम हाईलाइटिंग राइट नाउ इज स्किज़ोंट, ठीक है। इट इज नथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। ऐसा टर्म है कि उस शेल को स्किज़ोंट बोला गया है, या उस सिंगल सेल को बोला गया है, एंड देन इट गोज ऑन मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस वीडियो अर्लियर एज वेल, बट आई हैव अ वीडियो टू शो यू, ठीक है। मुझे बताना अगर आपने ये देखा हुआ है। एंड प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, ठीक है, इट्स अ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज नथिंग बट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज मलेरिया जैसा डिसीज, डेडली डिसीज, अगर उसको टाइमली देखा ना जाए, ठीक है। गिव मी अ मिनट, आई सी आई हैव, मेरे पास शायद मैंने इसको दिया नहीं हुआ तुम लोगों को, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, I'll start playing the video for you. Do let me know if you're able to see that video, नहीं तो otherwise इसको दूसरी स्क्रीन पे दिखा दूंगी मैं, ठीक है। So everyone is able to see that video, दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, sir. And were you able to hear it as well? Yes, ma'am. चलो ठीक है, do see this video, ठीक है। I'll keep myself muted. Once it is finished, we'll take up the questions, okay? The malaria life cycle follows a devious path, swapping back and forth between mosquitoes and humans. This mosquito is infected with the malaria parasite. Because she is pregnant, she has become hungry for human blood. During the bite, she injects saliva to stop the blood from clotting. Her infected saliva also carries the malaria parasite. The parasite rides the bloodstream like a network of roads, seeking its first target, the core of your body's blood filter system, the liver. Sensing its arrival at the liver,
the parasite searches for an exit. A sentinel Kupfer cell is the entry point to liver tissue. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. A single infected liver cell can create thousands of new parasites. The next generation of parasites are modified to infect a new target: red blood cells. Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls. Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. So did you all see the video? कुछ समझ में आया? It does look deadly and it is deadly. ठीक है, if not treated in time, it leads to anemia as well as brain damage. समझ में आया? कोई डाउट्स किसी को? Anyone? ठीक है. So this is how this is only about Plasmodium right now, but ऐसे बहुत सारे microorganisms होते हैं जो different तरीकों से favorable conditions में different react करते हैं. ठीक है, and this is how one of the microorganisms was reacting in your body. ठीक है, and currently we are only talking about asexual reproduction. अभी तक sexual reproduction शुरू नहीं हुआ है, तो every topic which is being covered right now is a part of asexual reproduction, which is two parents are not required. It is only one parent which is well enough or is more than enough to produce an offspring. ठीक है, अब आता है fragmentation. Fragment का मतलब क्या होता है? जल्दी से. What is the meaning of fragment in English? Simple. मतलब मैं साइंस का नहीं पूछ रही हूँ. फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या है? तो आपको समझ आ जाएगा कि साइंस इज नथिंग बट इंग्लिश तो कोई लैंग्वेज नहीं है इसमें. अपार्ट फ्रॉम मानवी, एनीवन एल्स? कोई भी बता सकता है. हंसराज बताओ. A piece. ठीक है, फ्रैगमेंट मतलब कोई टूटा हुआ हिस्सा. ठीक है, किसी भी चीज का एक पीस गिर गया या टूटा हुआ हिस्सा हो गया, कोई फ्रैगमेंट हो गया. ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. वो कितना टूटा, कितना हिस्सा उसका टूटा, 10% टूटा, 20 टूटा, 90% टूटा, दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट. फ्रैगमेंट मतलब टूट गया कुछ हिस्सा, हमें नहीं पता कितना परसेंट टूट, वो कितना भी हो सकता है, वेरिंग है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा ये किस में होता है? स्पाइरोजाइरा में. ठीक है, सबसे ज्यादा ये इसमें देखा जाता है. फ्रैगमेंटेशन जो हम पढ़ रहे हैं आपके इंसाइट के हिसाब से, आप स्पाइरोजाइरा को ही मानोगे. स्पाइरोजाइरा कुछ नहीं है. अगर आप अपने सामने एक इमेज देख रहे हो तो दिस इज अ काइंड ऑफ एल्गे. ठीक है, ये एक एल्गे है जो पॉन्ड्स में, रिवर्स में, स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर जो हरी सी लेयर आ जाती है. आई शो यू द पिक. ठीक है, ये जो पॉन्ड है उसके ऊपर ये हरा हरा सा देख रहे हो, काई कहते हैं जिसको आप, काई सी जम गई है ऐसा लगता है ना, तो दैट इज नथिंग बट एल्गे. ठीक है, एल्गे आर वेरी यूजफुल. देखने में गंदे लगते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये पानी डेडली है लेकिन they are very good for the environment. Why?
मतलब एक्सेस में नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हो तो अच्छा होता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये हरे रंग के हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ये कैप्चर करता है सनलाइट को, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए थोड़े बहुत हेल्पफुल है। थोड़े बहुत क्यों बोल रही हूँ, वैसे ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनका एक्सेस भी मेरीन लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स राइट नाउ, बट दिस इज अ काइंड ऑफ एल्गे। ये एल्गे क्या करता है, ये एक धागे की तरह होता है, अगर आप इसका पीस उठा के देखो तो इट इज अ लॉन्ग चेन, एक ऐसा फिलामेंट सा है। ठीक है, एंड इट माइट ब्रेक, जब आप इसको उठा भी रहे होगे तो कहीं ना कहीं से ये टूट के गिर जाएगा, तो दैट इज नोन एज अ फ्रैगमेंट। ठीक है, अब ये फ्रैगमेंट जो बन गया, ठीक है, दिस फ्रैगमेंट विल कॉन्टिन्यूसली डेवलप, ये नीचे भी डेवलप होगा, ऊपर भी डेवलप होगा, एंड इट विल फॉर्म अ न्यू स्पाइरोजाइरा। ठीक है, तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म अपने में बना लेगा, चाहे कहीं से भी इसको तोड़ दो, कोई भी हिस्सा इसका टूट के गिरा तो वो हिस्सा दोबारा से रीग्रो होके पेरेंट स्पाइरोजाइरा बन जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो वो अपना सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, चाहे वो कितने भी पीसेस में टूट जाए, जितने भी पीस टूट के गिरेंगे वो उतनी बार अपने आप को एक पेरेंट बना लेगा, दोनों साइड से अपने आप को ग्रो करके। ठीक है, एंड सिर्फ ये नहीं है कि स्पाइरोजेरा हम सुनते हैं कि ऐसा है कि जब ये टूटता है, किसी ने तोड़ा, मैकेनिकल इंजरी हुई, किसी ने जाके जानबूझ के तोड़ दिया, तो ही ये ऐसा करेगा, नहीं। स्पाइरोजेरा खुद भी जब बहुत लंबी लेंथ हो जाती है ना, बिकॉज ऑफ वाटर करंट, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, ये अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की बात ना भी करो तो बहुत लंबी चेन, ये फ्रेजाइल होता है, तो बहुत लंबी चेन ये मेंटेन भी नहीं कर पाता, ये ब्रेक्स इटसेल्फ, तो उस चीज को भी आप फ्रेगमेंटेशन कह सकते हो। ठीक है, और अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है कि ये सेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये पढ़ोगे कि एल्गे एक तरह से एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। इफ यू टेक अ बायो यू विल गेट टू नो कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस सेक्सुअली, बट दैट इज अनदर स्टोरी, जिसमें दो फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि फ्रैगमेंटेशन जो स्पाइरोजाइरा करता है दैट इन्वॉल्व्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक सा है, और सिर्फ मैकेनिकल इंजरी से नहीं, लेंथ भी लंबी हो जाएगी तब भी इट डिवाइड्स इटसेल्फ एंड बिकम्स द पेरेंट एवरी फ्रैगमेंट। ठीक है, then comes this is very important before we take up the slides which are coming after this। ठीक है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो अगली स्लाइड्स नहीं समझ में आएंगी। anyone who knows or has an idea of what is a stem cell, या कहीं सुना हो, किसी ने सुना है? मानवी, कीप योरसेल्फ म्यूटेड बच्चा। anyone who has heard of it, anyone who has heard of it, what are stem cells? कभी भी सुना हो, टीवी में देखा हो, कभी कुछ सुना हो इसके बारे में, या पहली बार सुन रहे हो? किसी को भी नहीं पता? नो वन नोज, नो वन। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? सार्थक, एनी आइडिया व्हाट इज अ स्टेम सेल? सार्थक मल्होत्रा, टू बी प्रिसाइज। No, ma'am. नहीं पता स्टेम सेल्स क्या होते हैं? किसी को भी नहीं पता? चलो एनीवेज, कभी चलो उस टॉपिक को मैं कभी बाद में खींचूंगी। ठीक है, दैट इज अ बिग टॉपिक। Janvi has something to say. She says body is raw material, kind of in that direction, but not a proper answer. हाँ, वो just मैम आई एम नॉट सो श्योर बट मैंने शायद किसी एक मूवी में देखा था दैट स्टेम सेल्स काइंड ऑफ लाइक जब पूरा ब्लड काइंड ऑफ डैमेज हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्ट हो जाता है, तो तब स्टेम सेल्स को रिप्लेस करना होता है। okay, quite an off track topic, but anyways, ठीक है, let me get this up। ठीक है, कुछ नहीं होता, नहीं भी पता तो you should know this। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? कभी तुमने एड्स देखी हो कि जब भी कोई बेबी होता है, ठीक है, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी एड्स भी आती हैं कि स्टेम सेल स्टोरेज है एक, कि एम्ब्रियो सेल्स को स्टोर करके रख लिया जाता है। द सेल्स स्पेशली ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी आर स्टोर्ड। ठीक है, उसको स्टेम सेल स्टोरेज भी कहते हैं। उनको स्टोर किया जाता है कि वो आगे जाके कभी लाइफ में यूज हो सके। इतनी क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टेम सेल यार, कि वो
आगे जाके लाइफ में वो 40 साल का भी हो रहा है तो यूज हो जाएंगे, ठीक है। दे आर केप्ट इन अ फ्रोजन स्टेट। कब तक रखे जाते हैं, उन सालों साल 30 years शायद लाइफ होती है, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। बहुत सालों तक फ्रोजन स्टेट में रहते हैं, ठीक है। दैट्स अ बैंक, स्टेम सेल बैंक के नाम से भी जानोगे, कभी गूगल सर्च करना, देयर आर सो मेनी स्टेम सेल बैंक्स, ठीक है। ये क्यों होते हैं और ये हर ह्यूमन बीइंग में होते हैं। द मोमेंट यू आर बोर्न यू हैव सो मेनी स्टेम सेल्स, ठीक है। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एज करते जाते हो वो स्टेम सेल्स कम 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 और कम होते रहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी मान के चलो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स है, ठीक है। हमें ये पता है हम मल्टी सेल्यूलर है, और मुझे पता है मेरा लिवर सेल मेरे नर्व सेल से अलग ही दिखता है, राइट। हमारा रेड ब्लड सेल अलग दिखता है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल अलग दिखता है, मेरा स्किन सेल अलग दिखता है, मेरा किडनी सेल अलग दिखता है। एवरी सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टिश्यूज, इन द टर्म ऑफ टिश्यूज, किसी टिश्यू की बात करो तो एक टिश्यू के सेल अलग होंगे, एक टिश्यू के सेल अलग होंगे। ये अलग होते कैसे हैं? अगर हम शुरू से शुरू करें स्टोरी, जो कि जब एग सेल और एक स्पर्म सेल, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स व्हेन दे fuse together, fertilize, when the sperm cell fertilizes the egg cell of a human, तो सब होता तो एक ही सेल है ना, जिसके अंदर वो एक्चुअली में वो स्पर्म सेल घुसा है, होता तो वो एक ही सेल है, सिंगल सेल है ना। तो वो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है वूम्ब में किसी भी मदर के, और उसके बाद वो ग्रो कैसे करता है? तो मान के चलो ये एक सिंगल स्टेम सेल ही मान लो, ठीक है, एक सिंगल तरह का सेल है। अब इस सेल ने डिवाइड किया, दो तरह के सेल बन गए, फिर फर्दर इसने डिवाइड किया, ये बन गए, ये बन गए, इस तरह से चेंज चलती रहती है उस सेल की, ठीक है। एक बारी फर्टिलाइजेशन हो गया एक सेल का स्पर्म सेल से, तो वो साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से ऐसे आठ, ऐसे बनता रहता है। द साइकिल कॉन्टिन्यूज। होता कैसे है वो, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक ये सेल था, ये फर्टिलाइज सेल था, इसने अपने दो वर्जन्स बनाए, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात देखना, वेरिएशन आ गया। तुमने देखा यहाँ पे एक वेरिएशन आ गया, येलो डॉट जो इसमें नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये तुम्हारा बोन सेल बन गया, ठीक है। अब बोन सेल ने भी दो सेल को प्रोड्यूस किया, एक तो बोन ही रहा, एक और बना जिसमें एक और म्यूटेशन आ गई या उसका डीएनए एक्टिवेट हो गया। The things which you are seeing which are not similar to the other cell, मतलब ये इस सेल से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो डीएनए बैठा था, हमने अभी पीछे पढ़ा कि वही डीएनए की कॉपी इसमें भी गई होगी, वही डीएनए की कॉपी इसमें भी गई होगी। इसमें 23 पेयर थे, सो सॉरी, इसमें 23 पेयर थे, तो इसमें भी 23 पेयर रहे होंगे, इसमें भी 23 पेयर रहे होंगे, राइट। तो गड़बड़ कहाँ हुई कि जब वो येलो बॉल यहाँ पे उठ के आ गई, इसके डीएनए का, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, इसका जो डीएनए था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसका भी वही सेम डीएनए था, ठीक है। पेरेंट ने सेम डीएनए ही पास किया, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने उसको अलग डीएनए दिया, डीएनए एग्जैक्टली सेम कॉपी होता है, ठीक है। अब मान के चलो ये डीएनए एज इट इज रहा, जब ये सेल बन गया, नया सेकंड वाला सेल नया बन गया, इसका मान लो एक ऐसा सेक्शन था डीएनए का जो एक्टिवेट हो गया। मान के चलो इसके अंदर भी वही डीएनए था, पर ये पूरा का पूरा इनएक्टिवेटेड था। मतलब ये एक ऐसा धागे की तरह जो अपनी कॉपी बनाए जा रहा है, अंधा होकर कॉपी बना रहा है अपनी, क्योंकि इसको पता है इसको एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जा रहा, करता जा रहा। जैसे जैसे सेल बनते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके डीएनए का कोई ना कोई अलग हिस्सा एक्टिवेट हो सकता है। अब इस वाले सेल का ये वाले डीएनए का हिस्सा एक्टिवेट हो गया, तो इसने अपने आप को व्हाइट ब्लड सेल बना लिया, ठीक है। दिस इज यू व्हाट यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस, कि आपके सबके अंदर, अगर मैं आपकी बात करूं आईज में जो सेल बैठे हैं, या मैं बात करूं आपकी किडनी में जो सेल बैठे हैं, अल्टीमेटली वो एक दिन सब एक ही सेल से बने। मदर का वो एक एग सेल, पहले ना आंख थी ना किडनी का कोई सेल था, सब मदर के वो एक ही सेल थे, जो फर्दर डिवाइड होते चले गए, होते चले गए। तो जब वो डीएनए हुआ, डीएनए सेम ही रहा, लेकिन उसका कोई ना कोई हिस्सा जब
स्पेशलाइज करने लगता है। इस चीज को आप डिफरेंशिएशन भी कहते हो। हमने अगर आपने 9th क्लास में याद रखा हो कि सेल डिफरेंशिएट, वो डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, डीएनए एक्टिवेशन। जब कोई सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर सेल को सिग्नल मिल गया न्यूक्लियस से कि यार तुझे बोन सेल बनना है, तो वो डीएनए के उस सेक्शन को एक्टिवेट करवा देगा जहां बोन सेल एक्चुअली बनना है और वो उसका शेप वैसा बनना है। फिर उसने और सेल्स बनाए, अब उस सेल ने कहा कि नहीं यार तू लिवर का सेल बन जा, अब वो लिवर वाला पार्ट उस सेल का डीएनए का एक्टिव हो गया तो वो लिवर सेल बन गया। तो दिस इज हाउ अ सिंगल स्टेम सेल, अभी भी देखोगे ध्यान से तो एक एक स्टेम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ये बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड है। लेकिन देख रहे हो विद टाइम, अगर आप टाइम लैप्स की बात करो कि मान के चलो यहाँ पे वो 1 सेकंड का सेल था और यहाँ पे वो 3 महीने का हो गया बच्चा, यहाँ पे वो 9 मंथ्स का बच्चा हो गया, अगर वो नीचे तक फर्दर डिवाइड कर रहा है सेल, तो कहीं ना कहीं स्टेम सेल कम होते जा रहे हैं। पहले ये एक था, अब एक रह गया, एक रह गया, बाकी जितने भी उसके डिवीजन हो रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं और स्टेम सेल एक ही रह रहा है, लेकिन बाकी सारे हिस्से स्पेशलाइज होते जा रहे हैं। इज दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्टेम सेल कुछ नहीं है, एक जादुई सेल है जो कि डिवाइड करता है और एक्टिवेट करके अपने आप को किसी भी शेप में रख लेता है। इसलिए इनको प्रिजर्व करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेम सेल अगर हमने प्रिजर्व कर लिया, खुदा ना खास्ता कभी किसी बंदे का 35 साल या 25 साल में एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग कट गई, एम्पुटेट करना पड़ा उसकी टांग को, तो देर आर चांसेस कि आप प्रोस्थेटिक्स ना लगा के, अगर उसका टांग का हिस्सा ऐसा रिजुविनेट हो सकता है, कोई हिस्सा ऐसा लग सकता है नया, तो उसी के स्टेम सेल को यूज करके वहां पे स्किन सेल्स बना दिया जाएगा। उसके लिए डिफरेंट मीडिया होते हैं कि उस सेल को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि वो स्किन सेल ही बने। तो अलग अलग तरीकों से स्टेम सेल को यूज किया जा सकता है, लाइफ सेविंग होते हैं। ठीक है, समझ में आया या बिल्कुल ऊपर से गया कि स्टेम सेल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? नहीं समझ में आया? समझ में आया, यस और नो? Yes, ma'am. बाकी किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट कि स्टेम सेल करते क्या है एक्चुअली? इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, अपलोड हो जाएगी, तो डू वॉच इट इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, एंड अदर दूसरी क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर स्टेम सेल है, आपके बोन मैरो में अभी भी स्टेम सेल है, ठीक है, और वो अनडिफरेंशिएटेड बैठे हैं। देखो हमने ये डिस्कस किया ना, एक स्टेम सेल लिवर बन जाएगा, एक इंटेस्टाइन बन जाएगा, एक हार्ट का बन जाएगा, एक रेड ब्लड सेल बन जाएगा, पर कैसे बनते हैं? सिर्फ डीएनए एक्टिवेशन से। ठीक है, अगर आपके आंख में इस टाइम पे जो सेल बैठा है उसका सारा डीएनए ऑफ बैठा है, जैसे उसकी स्विच ऑफ कर रखे हैं, उनका कोई सर्किट नहीं है, ठीक है, स्विच ऑफ है सारे, एक ही सर्किट चल रहा है उसमें, एक ही डीएनए का यूनिट ऑन है जो है आई सेल वाला सेगमेंट, जो उसका जीन था आई का, सिर्फ वही ऑन है। बाकी आंख के अंदर वही डीएनए है जो पैर के टोज के सेल के अंदर होगी, पर पैर के टोज के अंदर वाले में डीएनए उसी का एक्टिवेटेड होगा, आंख वाला एक्टिवेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो डीएनए इन योर होल बॉडी इज सेम, इट इज ओनली कि कौन से सेल का कौन सा डीएनए एक्टिव फॉर्म में। ठीक है जी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस दैट्स इट। अगर नहीं समझ में आता नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। देन इज रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब है किसी चीज का दोबारा से बन जाना, उग जाना, रीजनरेट हो जाना। ठीक है, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल है ये हाइड्रा का है, ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेनेरिया। ये दोनों ओशंस में, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मली है मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, दे आर नॉट सिंगल सेल, दे आर मल्टी सेल्यूलर, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। जब जब ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है तो उसके नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो वो रीजनरेट कैसे करते हैं? मान लो कि बीच में से हमने हाइड्रा को काट दिया, तो हाइड्रा का ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बना लेगा और ये वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा बना लेगा। ठीक है, जो रेड से मैंने हाईलाइट करे हैं, दे आर द वंस who have been regenerated, those body parts have been regenerated। तो एक कटा और उसके 2 बच्चे इस तरह बन गए, रीजनरेशन हो गया उनका। ठीक है, सेम इज द केस फॉर प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के भी कितने भी हिस्से कर दो, यहाँ पे 2 करके दिखा रखे हैं। तो हेड ने अपना नीचे वाला हिस्सा बना लिया, ट्रंक ने क्या किया, हेड भी बना लिया, टेल भी बना लिया, और टेल ने क्या किया, पूरा हिस्सा अपना ऊपर बना लिया। सो दे आर फॉलोइंग रीजनरेशन रूल्स।
बट माय क्वेश्चन इज, अभी हमने कहा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। फ्रैगमेंटेशन में भी तो वही हो रहा था, उसका जो हिस्सा टूटा उसने अपने आप को बना लिया। रीजनरेशन में भी वही हो रहा है, जो उसका हिस्सा टूटा उसने अपने आप को पेरेंट बना लिया। एनी क्लू कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब दे शुड लुक आइडियली सेम। रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस क्या हुआ? तो अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम? फ्रैगमेंटेशन भी तो बोल सकते थे इसको। सोचो। हाँ तनिषा। हम फ्रैगमेंटेशन में वो इक्वली डिवाइड होते हैं एंड रीजनरेशन में कोई भी बॉडी पार्ट उनका मिल जाए वो रीजनरेट हो जाता है। नहीं नहीं, बल्कि फ्रैगमेंटेशन में तो ऐसा होता है कि वो स्पाइरोजाइरा एक्चुअली में किसी भी हिस्से में छोटा या बड़ा हिस्सा कर दो वो तब भी पेरेंट बन जाएगा। यू आर राइट, बट यू सेड इट ऑपोजिट वेज, ठीक है। बल्कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में ये होता है पर्टिकुलर सेक्शन में ही वो कट होंगे तभी वो रीजनरेट हो सकते हैं, नहीं तो वो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है जिस जिस एरिया में उनके स्टेम सेल प्रेजेंट होंगे, स्टेम सेल को रीजेनरेटिव सेल भी बोला जाता है, ठीक है। जिस जिस हिस्से में वो रीजेनरेटिव सेल्स अवेलेबल हैं, अगर वो वहां से काट दिए जाएं तब दे कैन ग्रो इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म इन इटसेल्फ, ठीक है। हाइड्रा का केस बहुत ही अलग होता है। हाइड्रा की एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे यू विल गेट टू नो कि हाइड्रा कितना स्पेशल है और उसको कितना पढ़ते रहते हैं साइंटिस्ट। ये इतना स्पेशल क्यों है और आपकी बुक्स तक क्यों आया है, आई शो यू कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बायोलॉजी की टर्म्स में, ठीक है। तो रीजनरेशन मतलब कि कुछ पर्टिकुलर प्लेन्स पे वो डिवाइड हो सकता है ओनली वेयर स्टेम सेल्स या रीजनरेटिव सेल्स आर प्रेजेंट। ऑन द अदर हैंड फ्रैगमेंटेशन ऐसी चीज है उसको कहीं से भी काट दो, उसके अंदर स्पाइरोजाइरा के अंदर कोई स्टेम सेल नहीं होते हैं, उसको कहीं से भी काट दो उसे रीजनरेट करना ही करना, उसके सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल का कोई रोल नहीं आता। बट इन दोनों के अंदर स्टेम सेल का बहुत रोल होता है, इसलिए स्टेम सेल इसलिए पहले पढ़ाया था मैंने, ताकि तुम्हें वो पता हो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। आई टेक दिस अप दिस स्लाइड इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। देखते हैं कल होगी या परसों होगी, ठीक है। जब भी होगी दिस स्लाइड विल बी टेकन अप वंस अगेन, क्योंकि हाइड्रा मुझे बताना है व्हाई इट होल्ड्स सच एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन बायोलॉजी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास नाउ, ठीक है। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, Bye, ma'am. बाय।